Greeting everyone. Today we are discussing about the chapter 1 relation and function of 12th class mathematics. For what is the relation, what is the function? We have already understood about the relation and function is 11th class, but some modification of 12th class relation and function we will discuss about it. Before discussing about the relation and function, we should be some previous knowledge, and today we will remember the type of relation and some sets numbers also. It is a previous knowledge. Firstly, you will like my video, subscribe and share also. So now we are going to the chapter relation and function. It is very important, and simply we will discuss about the relation and function. Firstly, I will check the discussion about the numbers. Firstly, it is a previous knowledge. What is previous knowledge? In 9th and 10th class and 11th class, we have already discussion about the numbers. For example, numbers means natural numbers. Second is whole numbers. Third is real numbers, rational numbers and irrational numbers. Again, integers, etc. So you know about the previous knowledge, the natural number, which number starting from 1 to infinite, that is called natural number. Whole numbers, which number starting from 0 to infinite. Third, real numbers, both numbers rational and irrational is called real numbers. And you can say all numbers are called the real numbers. Third, next is rational number, the p upon q form, where q equal to not 0, p and q are integer. It is called rational number. Irrational number, which number we can't write in the form of p upon q, that is called irrational number. Now next is integer, the positive and negative sign of whole numbers, it is called integers. So now we will go in the next step. First, set. In previous classes, 11th class, we have already learned about the sets. So what is the define of set? Set we can say the collection of well defined objects is called set. We will not go into the deeply of the set, but simply we will understanding about that what is the define of set and other. Now set, if we have given the two sets, and if set A and set B, the element of set B belongs to the set A, then we can say B is a subset of A. Now again we will go to the relation and function. It is a simply defined and simply knowledge. It is called the previous knowledge about the relation and function. Now we will going to the in 11th class also the what is ordered pair. In this topic we have already learned about the 11th class. Ordered pair means if we have given two elements A and B,
then A and B listed in form A and B is called ordered pair. Ordered pair. It means if we have given the two elements A and B and listed in the form of A and B in bracket is called ordered pair. Next, Cartesian product. The sequence we will go. Next is ordered pair. Ordered pair we have written down and understood about in the previous class also. Now Cartesian product. Cartesian product. In 11th class, you know about this type of sequence is called symbol of Cartesian product. So what is the Cartesian product? We simply describe about it. If we have given two set A and B, then we will take the first element of set A and second element of set B in ordered pair is called the Cartesian product. It means you understand it. We will take the first element of set A and second element from set B is called in ordered pair is called Cartesian product. It means now if we will write down the definition of this, then if we have given two non-empty set A and B, then we will take A from set A and you can say the first element from set A and second element from set B in ordered pair is called Cartesian product. Now it is a Cartesian product. Next is we will go into the relation. Now mean, because here in a contest we have write down in how many today which topic we will discussing about this video. We have write down here contains, relation, domain, codomain, range, types of relation, function, types of function. Today we will discuss about this type of topic. Now again relation, the define of relation. If we have given two empty set, two non-empty sets, the relation between A and B is a subset of Cartesian product, where similarly we will take first element from set A and second element from set B. But you will not write down here. Or we have already discussed about the Cartesian product. Cartesian product means similarly we will take the first element from set A and second element from set B in an ordered pair. That is called Cartesian product.
अब if A belongs to set A and B belongs to set B, then A B belongs to R. R here indicate for relation. Now again we will discuss to understood about the relation. Subset means we will some describe about in with the example, because in mathematics without example we can't the understood about the define without example. So now today I will just write down the example. If we have given question, example you can say, if we will discuss domain, codomain and range of this exercise, and in this question we have given 2x plus y equal to 10 and x and y belongs to n. N is a natural number and other condition we have given x less than 5. Understood? So how can we will make the relation between this condition? So how? Firstly, x you image करो आप कि x लेस देन 5 है यहाँ पे, तो लेस देन 5 मीन्स यू नो दो वी हैव एलिमेंट आर इन अ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 and 4. This type of set we can see this type of set. Again find out the relation if we will be given, and other condition is x and y belongs to n. It means x और y जो है हमारे पास दो सेट है, एक सेट है x and second is y. This type of set x and y. Now clearly we will find out the relation. हमने पहले जो पढ़ा था वो डिफाइन पढ़ी थी कि रिलेशन क्या होता है. यहाँ पे हम रिलेशन कैसे बनाएंगे वो पढ़ाता हूँ मैं आपको आज. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई में पुट x इक्वल टू 1. यहाँ ये x की वैल्यू है और x की वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे. तो देखो इधर पुट, अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे y इक्वल टू सिंपली 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 10. तो 2 प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 2 इक्वल टू y इक्वल टू 8. Similarly put x equal to 2, put the value of this, तो 2 multiply 2 plus y equal to 10, 4 plus y equal to 10, y equal to 10 minus 4 equal to 6. Next, third step, put the value of x equal to 3 in given condition, तो 2 multiply 3 plus 5 equal to 10, 6 plus y equal to 10, y equal to 10 minus 6, y equal to 4. Next, x equal to 4, because we have given x is less than 5. x जो 5 से छोटा है और नेचुरल नंबर है, तो वो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है 1, 2, 3 and 4. हम इनको पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा y की कंडीशन सेट b मिलेगा, जो y हमारे पास मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा इस रिलेशन से. ठीक है, तो मैंने देखो x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4. अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस y इक्वल टू 10, 8 प्लस y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 2, 8 इक्वल टू. तो रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन?
और रिलेशन क्या होगा, देखो फर्स्ट हमने अभी डिफाइन पढ़ी थी कि रिलेशन का मतलब क्या होता है कि पहला एलिमेंट हमने पहले वाले से लेना है, देन दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से दूसरे सेट से लेना है। तो यहाँ पर हमको एक रिलेशन कंडीशन दे रही थी, हमने उस कंडीशन से इसको क्या करा, एक रिलेशन बना। तो देखो रिलेशन इज, हमारे पास क्या बना रिलेशन पहला 1,8 फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड 2,6 वैल्यू ऑफ y, थर्ड नेक्स्ट इज 3,4 and next is what 4, so it is a relation between x and y. And now here completely you have write down it. If we will be going the next step, we will make here the relation between x and y. Now I am erasing it and going to the other step. Yes. Then if we will make it the form of this type, this here 1, 2, 3 and 4, it is a set A, a set X, and second is what 8, 6, 4 and 2. So that is a relation, this type of relation. Yeah, it is indicated, it is a set X and it is a set Y. Now we are going to the next step. अंडरस्टैंड, इसके बारे में समझ गए आप कि ये जो है ये एलिमेंट हमने सेट ए के रखे, एक्स के रखे, वहाँ से हमको सेट वाई के एलिमेंट्स मिले, क्योंकि हमारे पास रिलेशन में एक कंडीशन दे रखी थी कि 2x plus y equal to 10. उसके थ्रू अबाउट दिस थ्रू वी विल मेक अ रिलेशन। हमने इसमें क्या बनाया, एक रिलेशन बनाया। कैसा रिलेशन बनाया, मैंने x की वैल्यू पुट करी और कंडीशन हमारे पास दे रही थी कि x एंड y बिलोंग्स टू n। इट मीन्स ये नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करते हैं, ये हमको कह रखा था। और दूसरी कंडीशन दे रही थी कि x लेस देन 5, मतलब x नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन उसके बाद नेचुरल नंबर के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, 5 से छोटा भी होना चाहिए। तो 5 से छोटा होने का मीन्स हमारे पास कौन से नंबर आ गए, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर, वहाँ से हमारे पास क्या बन गया, ये एक रिलेशन बन गया इसके बीच में। ठीक है, अब ये तो आपको रिलेशन बनाया सिखाया मैंने, ठीक है। इसी से आगे हम इसी रिलेशन को इंडिकेट करके आगे हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपली एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे हमको इसको पता करना है। देखो, किसी भी रिलेशन, इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, the first element of the relation is called domain. It means we will write down the define of domain, then we can say the first element of relation is called domain. क्लियर हो गया। अब मैंने बोला भी फर्स्ट एलिमेंट, या यहाँ भी आप कह सकते हो उसको कि ये फर्स्ट एलिमेंट है। देखो 1, 2, 3, 4 ये सारे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। और फर्स्ट एलिमेंट को ही हम क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। तो अगर मैं इस सेट की बात करूँगा, इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास डोमेन। टेल मी व्हाट इज द डोमेन। डोमेन इक्वल टू हो जाएंगे इसमें कौन कौन से होंगे, देखो 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर मैं डोमेन की बात करूँगा, इफ वी विल फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, देन वी विल गेट 1, 2, 3, 4। ये क्या हो गया इसमें
इसके डोमेन हो गए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? डिफाइन मैंने लिख दिया आपको कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। सिंपल सी बात है, किसी भी रिलेशन में अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा वो सारे क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। अब सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, रेंज। कि व्हाट इज द रेंज? रेंज की डिफाइन क्या होती है ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। रेंज, द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन, सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड क्या? रेंज। समझ में आ गया? फर्स्ट एलिमेंट सारे डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट रेंज। अब ये फिगर मैंने आपको बना रखी, देखो इस रिलेशन की ये फिगर, यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि डोमेन कौन से होगी? 1 2 3 4 और रेंज क्या होगी? 8 6 4 एंड 2। ये क्या होगी? इसकी रेंज होगी। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अभी, ठीक है ना? अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को अगर देखें आगे तो यहाँ पे मैं आप खुद भी बता सकते हो कि रेंज क्या हो जाएंगे। अगर मैं रेंज लिखना चाहूँ इसकी रेंज अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगी इसकी रेंज? क्या होगा? 8 6 4 एंड 2, 8 6 4 एंड 2। सिंपल। अब आप कुछ डोमेन और रेंज पढ़ने में तो हमको देख के ही पता चल रहा है कि कौन सा रेंज है और कौन सा क्या है? डोमेन है। फर्स्ट एलिमेंट ईच रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? रेंज। ये मैंने आपको बता दिया। अब तीसरी चीज आती है यहाँ पे कोडोमेन। देखो कोडोमेन में यही, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, बिकॉज हमने रिलेशन यहाँ बना दिया, ये फाइंड आउट भी कर दिया हमने। तो अब मैं इसी सेट जो हमारे पास रिलेशन बना है इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ आपके पास। अभी हमने डोमेन कोडोमेन के रेंज के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कोडोमेन। रेंज में हमको पता चल गई, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा कि y जो है y, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ या इस रिलेशन की बात करूँगा, तो यहाँ पर जो कोडोमेन होगा वो होगा y बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे अगर मैं इसी के बनाने की बात करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? पूरा ये y जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। जो भी दिए रहता है, अगर इसमें कोई भी और एलिमेंट दिया रहता है वो सारे क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। फॉर एग्जांपल इसमें और एक वर्ड, एक और नंबर आ जाता था 7, तो इसके अब कोडोमेन क्या हो जाएंगे? 8 6 4 2 7 भी इंक्लूड हो जाता है। या फिर मैंने आपको बता दिया नेचुरल नंबर अगर इस तरीके का भी होता तो y के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कोडोमेन कहलाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे तो हमारे पास ये देखो जहाँ से एरो ये मैपिंग हो रही है, जहाँ पे मैपिंग को तो हम क्या कहते हैं कि मैपिंग का मतलब होता है कि अगर इसकी मैपिंग इसके साथ होगी तो ये तो डोमेन कहलाएगा, ये रेंज कहलाएगा। लेकिन जहाँ पे कोडोमेन की बात आएगी तो कोडोमेन में हम जितने भी नेचुरल नंबर या जितने भी एलिमेंट उस सेट के हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे। वो अलग बात है कि रेंज उसमें से कितना में होगा? वो जिसकी इमेज बनेगी या जिसका रिलेशन होगा। जैसे ये 1 का रिलेशन 8 से है तो ये 8 क्या होगा? रेंज होगा। 2 का रिलेशन 6 से है तो ये भी रेंज कहलाएगी 6। 3 का 4 से है तो 4 क्या कहलाएगी? ये भी रेंज कहलाएगी। 4 to 2 ये भी क्या कहलाएगा? यहाँ पे रेंज कहलाएगा। लेकिन अगर मैं 7 की बात करूँ, फॉर एग्जांपल इसी सेट में 7 भी होता तो तब इसके अगर मैं कोडोमेन की बात करूँगा तो 8 6 4 2 7 ये सारे क्या हो जाते हैं? इसके कोडोमेन हो जाते हैं। अंडरस्टैंड है? सिमिलरली डोमेन में भी क्या होता है? डोमेन में भी जिसका रिलेशन है वही कोडोमेन कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। जैसे
अगर यहाँ पे मैं सपोज करो एक वर्ड और लिख देता 8 या 5 लिख दिया मैंने। अब आप बोलोगे सर हमने पढ़ा कि अभी हमने कि सारे डोमेन होते हैं, ज़्यादातर बच्चे यही पढ़ते हैं कि इसको सबको डोमेन बोलते हैं, इसको सबको कोडोमेन बोलते हैं, रेंज बोल देते हैं। नहीं, इसमें सम डिफरेंस क्या होता है? 1 2 3 4 जिसका रिलेशन किसी के साथ हो रहा है वो तो डोमेन कहलाते हैं। लेकिन ये 5 का कोई रिलेशन नहीं, किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ डोमेन। इस सेट में सेट ए की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये जो मैंने सेटअप नया बना रखा है, इसमें डोमेन क्या होंगे? खाली 1 2 3 4। इसमें 5 इज नॉट इंक्लूड डोमेन, 5 इसमें डोमेन इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली इसमें ये सारे एलिमेंट कोडोमेन तो कहलाएंगे। कोडोमेन क्या होगा? अगर मैं सेट वाई की बात करूँगा तो कोडोमेन क्या होंगे? कोडोमेन में हमारे पास क्या क्या आएंगे? देखो 8 6 4 2 और 7। ये मेरा नया वाला जो बना रखा है इसकी बात कर रहा हूँ मैं भी फिलहाल। इसको छोड़ा मैं सेट की एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है? शेयर नहीं कर रहा हूँ उसको, ये भी छोड़ दो, अभी सिर्फ एक्स और वाई लिखो इसमें। तो ये हो गया आपके पास, ये सेट मैंने बनाया नया वाला। इसमें हमारे पास एक एलिमेंट और जुड़ गया 7, ये तो कोडोमेन में गिना जाएगा। लेकिन जब मैं रेंज की बात करूँगा तो रेंज में जो डिजिट या नंबर जो है मैपिंग कर रहे हैं, ये मैप कर रहे हैं जो, केवल वही रेंज के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा? खाली उसमें देखो 7 के साथ कोई भी मैपिंग नहीं हो रही किसी की, तो इट मीन्स 7 इज नॉट अ रेंज, इट इज़ ओनली कोडोमेन। तो इसकी रेंज की बात करूँ तो अभी हमने लिखा भी है पहले भी 8 6 4। ये मैंने आपको लिख दिया कोडोमेन के बारे में। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। अब simply I am revising it also. Domain, the first element of relation is called domain. Range, the second element of relation is called range, and all elements of set B या Y second set are called codomain. क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पर आपको डोमेन के बारे में? कोडोमेन देखो, कोडोमेन जो उसका पहला एलिमेंट होता है रिलेशन का, वो सारे डोमेन कहलाते हैं। दूसरा कोडोमेन जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। और रेंज जिनके साथ रिलेशन या यू कैन से जो रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। यहाँ पर मैं छोटा आपको एक चीज़ और भी बताना भूल गया, उसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब आप जानते होंगे, ए क्रॉस बी हम कैसे बनाते हैं। सिंपल से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर बाई चांस वी विल बी फॉरगेट इट, तो हमारे पास दो सेट दे रखे हैं ए बी एंड सी। दूसरा सेट दे रखा है ए, तो ए हो गया हमारे पास इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू 1 2 3। तो हम ए क्रॉस बी बनाते हैं ऐसे। पहला एलिमेंट इसका लेते हैं, दूसरा इसका लेते हैं A2 A3 सेकेंड B1, फिर इसके मैप इसके साथ रिलेशन B2 B3, नेक्स्ट C1 C2 एंड C3। ये मैं थोड़ा आपको वैसे तो पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन बट इफ़ यू विल बी फॉरगेट कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होते क्या हैं उसमें ये मैंने आपको इंडिकेट करके दिखा दिया। बाकी तो मैं सारे डिटेल में आपको बता दी। अब आप आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि हमने कुछ तो 11th क्लास में पढ़ा था, कुछ हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि क्या होता है रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन।
बेसिकली द टाइप्स ऑफ रिलेशन मैं आपको और के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा कि बिकॉज वी हैव लर्निंग द 12th क्लास रिलेशन एंड फंक्शन, तो आई डिडंट नो अबाउट दैट कि वी विल रिवाइज, बट सिंपली वी रिमाइंड इट. 4 types of relation we have already understood in the 11th class. 11th क्लास में हम 4 तरीके के रिलेशन पढ़े हैं हमने वहाँ पे, ठीक है. सिंपली मैं थोड़ा डिस्कस उसके बारे में कर रहा हूँ. और 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंट. ये रिलेशन हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे. लेकिन पहले हमने 11th क्लास में कौन से रिलेशन पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा मैं समरी, यू कैन से समरी क्या होती है उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट समरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो पहला होता है इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो पहला होता है आपका एंटी रिलेशन. ठीक है, इसको वाइड रिलेशन भी कहते हैं. इसको सेम, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए नॉट रिलेटेड टू द रिलेशन ऑफ ए इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी रिलेशन. इट इज ए नॉट कन्फ्यूजन इट. अगर इफ the each element of set A is not related to the relation A cross A, that is called empty set. अब एग्जाम्पल कैसे, देखो ए इक्वल टू मैंने दे रखा है आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1, 2 and 3. सिंपली वेरी फास्ट वी विल अब रिलेशन बनाऊंगा मैं इसको. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिलेशन ये है कि x और y या ए एंड बी हमने एलिमेंट ले हैं तो सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 10. पॉसिबल है कि इसमें से हमने a एंड b बिलोंग्स टू ये मिल जाता है. अगर ए और बी हमारे पास सेट ऑलरेडी दे रखा है कि 1, 2, 3 है और हमने ए में से बी को माइनस करना है तो 10 कहीं से भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम ए इसको लेंगे 1 लेंगे 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस नहीं हो सकता. इट मीन्स ये जो रिलेशन बनेगा हमारा, इस रिलेशन को ही क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहलाते हैं. ये रिलेशन क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है. ठीक है, 1, 2, 3 ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए. अब ए माइनस बी कहीं से भी आपको ये 10 जो है वो नहीं आ सकता अगर हम कोई भी एलिमेंट लें इसमें से. क्लियर हो गया एम्प्टी रिलेशन के बारे में. सेकेंड रिलेशन में आपके पास आता है, उस रिलेशन को बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ में यूनिवर्सल रिलेशन. इस रिलेशन में यूनिवर्सल रिलेशन, इन दिस रिलेशन इफ सिंपली इसमें ईच एलिमेंट रिलेटेड टू द every elements of related to the relation. In this relation each element, you can see each, yes से इसको every element भी लिख सकते हैं, element related to the relation A क्रॉस B. क्लियर हो गया. अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे कर दिया कि ऐसे डिफाइन तो आपने बता दी, लेकिन हाउ कैन यू प्रूव इट. तो देखो हमारे पास सेट ये ले लेता हूँ, वो पुराना जो ले लेता हूँ 1, 2 और 3. अब यहाँ पे भी वही सेम
ए बी बिलोंग्स टू ए। अब इसका रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा, देखो ए एंड बी यहाँ पे सच दैट ए प्लस बी लेस देन क्या बन जाएगा 10 कर दो। इनमें से हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, अगर उन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी हर समय कब आएगी, 10 से क्या होगी, डाउन ही होगी। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, इस रिलेशन को क्या कहेंगे हम, ए प्लस बी रिलेशन को क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। क्योंकि अगर हम A1 लेते हैं B2 लेते हैं तो दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 10 से लेस हो गया। तो इसका मतलब इस तरीके के रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कौन सा रिलेशन बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड आता है आपके पास, थर्ड इज, ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बढ़ा रहा हूँ बिकॉज इन अ प्रीवियस क्लासेस 11th क्लास यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट दिस टाइप ऑफ रिलेशन। तीसरा आता है इसमें, अब आपको थर्ड आता है आपके पास, जो थर्ड रिलेशन है वो होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, इस रिलेशन में भी देखो क्या होता है। इस रिलेशन को अगर मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, इफ रिलेशन या इफ एलिमेंट डबल्ड ईच अदर, इसको लिख सकते हैं ईच या each element of any set, एलिमेंट से डबल, डबलेट या डबलेट भी बोलते हैं इसको, डबल भी बोल सकते हैं आप, डबलेट ए क्रॉस या डबलेट इन अ रिलेशन। डबलेट का मतलब समझते क्या होता है, रिलेशन ए क्रॉस ए। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट दे रखा 1 2 3, ये ए है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3। इस तरीके का जो रिलेशन बना, डबलेट का मतलब होता है वही नंबर रिपीट होना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इस रिलेशन को बोलते हैं, देखो इसमें वही नंबर रिपीट होना कह सकते हैं आप उसको रिलेशन में, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ आपने पढ़ा इसमें इनवर्स, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में हमने क्या पढ़ा कि इफ we have given two non-empty set, ये लिखेंगे इसमें, तो its reverse element we will find its inverse relation in A cross B, then you can say in the relation, अब यहाँ तो पढ़ लिया हमने, आप बोलोगे कैसे, तो देखो इधर ये हमारे पास सेट दे रखा है और हमारे पास A, B ए दे रखा है हमको, ये दे रखा है 1, 2। तो रिलेशन बनाओ इसको। रिलेशन में देखो, रिलेशन ऐसा बना देता हूँ मैं, A, 1, A, 2 या कुछ भी दे रखा है, A, B दे रखा है या फिर A, B, 2 दे रखा है, ये रिलेशन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका रेसिप्रोकल भी होना चाहिए। इट मीन्स इसमें 1, A भी होना चाहिए, और ये इसका क्या कहलाएगा, इस रिलेशन का अगर मैं ये करूँगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें 1, A होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए 2, B, इस तरीके का। इसको बोलते हैं
एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है। देखो थोड़ा मैं इसको इन्वर्स को, क्योंकि हमारे पास अभी नेक्स्ट स्टेप में भी हमारे पास इन्वर्स निकालने के लाएंगे, तो थोड़ा मैं इसको डिटेल से आपको बता देता हूँ, अंडरस्टैंड करा देते हैं थोड़ा सा। देखो अगर हमारे पास दो शेप है, मतलब 1 2 या फिर ABC को ABC और दूसरा शेप है 1 2 3, ये रिलेशन इसके साथ ये और ठीक हो गया। ये सेट A है और सेट B है। अभी तो ये A इसके साथ है रिलेटेड, B के साथ 2 है ये रिलेशन, और फिर C के साथ क्या है 3। बट जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स में क्या होगा, इसके डोमेन और रेंज जो यहाँ पर में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। डोमेन एंड रेंज बोथ आर इंटरचेंज ईच अदर, इंटरचेंज का मतलब जानते हो, रेंज जो है वो डोमेन में चेंज होगा, डोमेन किस में चेंज होगा रेंज में। तो अगर मैं इसका इन्वर्स की बात करूँगा तो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, 1, A 2, B एंड 3, C। ये क्या कहलाएगा, इसका इन्वर्स रिलेशन कहलाएगा। क्लियर? तो सो डीपली इफ यू विल बी डू द फंक्शन अबाउट दिस, तो दे विल बी अंडरस्टैंड हियर। अब नेक्स्ट इज हियर वी विल डिस्कस अबाउट द मेन 12 क्लास मैथमेटिक्स, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड what symmetric and equivalent. So now in my second video you will understand the reflexive for especially for 12th class, relation for 11th class. It is the previous class, previous video, introduction of relation and function with included the previous knowledge. Now for next video we will understanding about the reflexive, symmetric and transitive and equivalent, and also find other types of function, type 1 function, 1 2 function and other. Thank you, and see my next video. It is a part 1 and it is a part 2. Must see the next video. Okay, thank you and have a nice day.